Okay. Now let's move on to the next part of the topic. Okay. So revision is over. Now we are going to learn something new. So you can take a fresh page and write down the heading elementary transformations. ऐसा लिखो आप heading लिखो elementary. Okay. अच्छा ये पेपर वन वाला पार्ट मैं रब कर देता हूँ. दिस इज अंडरस्टूड पेपर वन में है. आप हेडिंग लिखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. टॉपिक का नाम रख रहा हूँ मैं. हेडिंग यू राइट डाउन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. elementary transformations. Now from here the 12th standard syllabus starts. अभी तक हमने रिवाइज किया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ओके. Now elementary transformation में there are two types of transformation. Now as the name suggests, transformation मतलब change. There is a change taking place, transformation taking place, ठीक है. So elementary transformation में there are two types of transformations that we have to learn. That is, लिख लो row transformation and column transformation. Done. First is row transformation. ऐसा लिख लो first वाला row transformation. फर्स्ट वाला. और सेकंड वाला जो देखना है वो है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. शॉर्ट फॉर्म लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन का. So there are two types of transformations we are going to learn, students, and this is a very important part of a topic. ये हमें आना चाहिए, कंपलसरी है. रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. Okay, please note down this, then we'll move ahead. Okay. Now let us first, now we'll learn both the things simultaneously. Let's first learn about row transformation as well as column transformation. Okay. Now we have to follow some operations while doing the transformations. Okay. जैसे आप लिखो operations to be followed, ऐसे heading दे दो आप operations to be followed. Operations to be followed while transformation. While transformation. ये हेडिंग दे दो आप operations to be followed while transformation और transformations ऐसा लिख लो. operations जो फॉलो करने हैं. ठीक है. now first लिख लो इसमें first one. Right on. Don't worry, I'll explain everything. First one लिखो interchanging any two rows or columns. Any two rows ब्रैकेट में लिख लो और columns. Interchanging any two rows or columns. मतलब अगर किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को अगर मुझे चेंज करना है तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा. ओके. नाउ द नोटेशन दैट इज यूज्ड इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स है, तो उसका जो नोटेशन है वो मैं लिख लेता हूं. देखो आप RI इंटरचेंज विथ RJ ऐसा लिख लो आप. RI इंटरचेंज विथ RJ. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. डायरेक्ट एग्जांपल ही लेंगे आप. तो इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू कॉलम, अगर मेरे को किसी भी दो रो और या दो कॉलम को चेंज करना है तो दिस इज द नोटेशन RI इंटरचेंज विथ RJ. ओके. लेट अस अंडरस्टैंड बाय टेकिंग डाउन वन और टू एग्जांपल्स. एक रो वाला एक कॉलम वाला एग्जांपल ले लेते हैं. ओके. राइट ऑन. एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 1. okay. Now let's take a matrix capital A. लिख लो कैपिटल A का फर्स्ट रो इज -1 2 रो.
means sleeping position. First row is -1, 2, and second row is 3 and 4. Okay, now let's concentrate right now only on the row. ये है row number 1 और ये है row number 2. ठीक है, now this is matrix A. Just pay attention and then you can write down. Interchanging any two rows or any two columns. अभी इस मैट्रिक्स में अगर मेरे को ये दो रो को इंटरचेंज करना है, if I want to interchange R1 and R2, so you know how will I do it? Just have a look. How will I do it? I will write down the notation. See over here. R1, I will put two-sided arrow and I will write down R2. Two-sided arrow. This is for interchange. इसका मीनिंग होता है कि R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करना है. Now just pay attention. जब मैं R1 और R2 को इंटरचेंज करूंगा तो मैट्रिक्स A is going to transform. मतलब मैट्रिक्स A चेंज हो जाएगा, कोई सेम मैट्रिक्स नहीं रहेगा. Which two rows I am interchanging? R1 and R2. दो ही रोज है, यहाँ पे तो दो ही रोज है. तो फर्स्ट रो will become the second row and second row will become the first row. तो देखो second row is 3, 4 now becomes the first row and first row becomes the second row. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है. So if I want to interchange R1 with R2 or you can say R2 with R1, anyways you can write down, then we are going to use this notation for interchanging any two rows or any two columns. And this notation is important. A equal to नहीं डालोगे, A transforms to मतलब change हो गया ना, A transforms to this matrix. Am I clear with this first transformation everyone? ये operation clear है first वाला everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Please note down. Then we'll take down one more example. ये 2 क्रॉस 2 वाला लिया. ये जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 2. अभी फिर 3 क्रॉस 3 वाला भी लेंगे हम. एक एग्जांपल. Okay, just note down this first example, which we have done it on row. So I hope you must have finished writing. Now let's take another example. ठीक है, अभी हम एक कॉलम पे ले लेते हैं. रो पे ले लिया तो रो तो मालूम पड़ गया अपने को कैसा इंटरचेंज करना है. अब कॉलम पे ले लेते हैं. ओके, so let's take down example number 2, second example. Now let us take a 3 cross 3 matrix. अच्छा, these examples I am selecting on my own. खुद ही मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ. Let's take a matrix B. मैट्रिक्स B का फर्स्ट रो लिखो. फर्स्ट रो -1, 0, 2. अच्छा, keep the numbers equally spaced. These numbers basically they are the elements or they are the entries of a matrix. इसको हम entries बोलते हैं. ठीक है, -1, 0, 2 first row, 6, 8, 5 second row and third row is anything -4, 9, 7. चलो अब हम क्या करते हैं, कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं. तो नाउ कॉलम इज अ स्टैंडिंग पोजीशन. देखो कॉलम इज अ स्टैंडिंग पोजीशन. ये है कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2 और ये है कॉलम नंबर 3. आई हैव नेम्ड दिस एज मैट्रिक्स B. नाउ लेट अस टेक 1 or 2 इंटरचेंजेस हम कर लेते हैं. नाउ सपोज फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैट्रिक्स B दिया है. ठीक है, अभी इसके ऊपर लेट अस फॉलो द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन. 2 का फर्स्ट. अभी मेरे को कोई भी दो कॉलम्स अगर चेंज करने हैं, नाउ C1 को C2 के साथ इंटरचेंज करना है या C2 को C3 के साथ इंटरचेंज करना है या C1 को C3 के साथ इंटरचेंज करना है. तो आई कैन इंटरचेंज एनी ऑफ द कॉलम्स विद द अदर कॉलम. अभी सपोज फर्स्ट वन, सपोज इफ आई वांट टू इंटरचेंज C1 विथ C3, तो राइट डाउन C1, पुट टू साइडेड एरोज एंड राइट डाउन C3. मतलब C1 को C3 के साथ अगर मुझे इंटरचेंज करना है, ठीक है. नाउ पे अटेंशन. तो मैट्रिक्स B, तो मैट्रिक्स नाम तो वही रहेगा, मैट्रिक्स B ओनली, बट मैट्रिक्स B ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. अच्छा, अभी कॉलम को इंटरचेंज करना है. बी वेरी केयरफुल. तो कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 का पोजीशन चेंज हो जाएगा. ठीक, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 का उनका पोजीशन चेंज हो जाएगा. कॉलम 2 पे फर्क नहीं पड़ेगा. कॉलम 2 विल नॉट बी अफेक्टेड. तो कॉलम नंबर 2 में पहले लिख देता हूँ 0, 8 एंड 9. कॉलम नंबर 2 इज अनअफेक्टेड. जब भी आप कॉलम्स लिखते हो ना, कॉलम वाइज लिखना है आपको. तो कॉलम नंबर 2 इज अनअफेक्टेड.
अब कॉलम नंबर 3 कॉलम नंबर 1 में आ जाएगा, तो दिस इज 2 5 7. कॉलम 3 becomes column 1. Column 1 will become column number 3, -1, 6 and -4. See, these transformations are very important, students. ये बहुत important है. चलिए first one, C1 interchange with C3. कॉलम नंबर 1 को कॉलम नंबर 3 के साथ हमने इंटरचेंज किया, कॉलम नंबर 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So I hope this is clear to everyone. Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड. अब बेसिक है इसलिए मैं एकदम धीरे जा रहा हूँ, गोइंग वेरी स्लोली. दिस इज एग्जांपल 2 वी आर डूइंग. अभी और एक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं. ये हो गया ना. लेट्स डू वन मोर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस ओनली. ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब अपने को लगने वाला है इमीडिएटली. ओके, ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ये इसके ऊपर हो गया. अब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर करते हैं. फ्रीडम सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन. Again, you see this is column number 1, column number 2, and column number 3. Now let's interchange C2 with C3. C2 को C3 के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं. ये ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर किया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम इसके ऊपर करेंगे. इट इज टू बी डन ऑन द प्रीवियस वन. दैट्स द रूल. तो मैट्रिक्स बी तो बी रहेगा, बट बी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड अगेन. बी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड. अभी इसमें फॉरगेट अबाउट दिस. ये मैट्रिक्स बी को आप भूल जाओ. ये ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर किया तो ये नया मैट्रिक्स मिला. अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर करना है तो वापस नया मैट्रिक्स मिलेगा. तो कौन से दो कॉलम्स को इंटरचेंज करना है? C2 और C3 को. अच्छा, आपके रेफरेंस के लिए मार्क कर देता हूँ. चलो, यू कैन डू इट योरसेल्फ आल्सो. दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3. ये है C1 है, ये C2 है और ये C3 है. अभी C2 C3 मतलब C1 तो सेम रहेगा. तो व्हाट इज C1? 2 5 7. C1 सेम रहेगा. C2 C3 का जगह चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो C2 इज व्हाट? -1 6 -4. C2. C3 इज 0 8 एंड 9. दैट्स इट. ये नया मैट्रिक्स मिला. ऐसा हम करते जा सकते हैं. दिस वी कैन कंटिन्यू टिल वॉट एवर वी वॉन्ट द आंसर. ये ऐसा हम प्रोसीजर बार बार लगातार कर सकते हैं. So this is first type of transformation, interchanging any two rows or any two columns. तो एक रो वाला देख लिया हमने एग्जांपल, और एक कॉलम वाला देख लिया एग्जांपल. So I hope this interchanging row and column is understood to everyone. Very important. Okay. So first type of operation is over. Now let's move on to the second operation. Operations to be followed by transformation. ठीक है. तो first interchange करना है, तो कैसे इंटरचेंज करना है मैंने आपको बता दिया. अभी सेकंड वाला ऑपरेशन सीखते हैं हम. ये इंटरचेंजिंग वाला हो गया. ठीक है. नाउ डोंट वरी, विल लर्न एवरीथिंग बाय, ये धीरे धीरे आएगा. हम वी नीड प्रैक्टिस ऑफ एग्जांपल्स. इन टॉपिक इज इंपॉर्टेंट तो है बट सिंपल है. प्रैक्टिस, एवरीथिंग इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस. ठीक है. सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन लिखो आप. सेकंड ऑपरेशन जो हमें सीखना है, मल्टीप्लाइंग, ऐसा लिखो, मल्टीप्लाइंग each element, multiplying each element of a row or columns. Multiplying each element, underline this, each element, ये word important है. Multiplying each element of a row or a column by a non-zero scalar. Non-zero scalar ब्रैकेट में लिख लो constant, constant number. Multiplying each element of a row or column by a non-zero number, you can say, or non-zero scalar we can say, that's a constant. ठीक है. हाँ, इसका पहले नोटेशन लिख लो. राइट डाउन द नोटेशन. Ri changes when we do
k into ri. I'll explain, don't worry. ri changes when we do k times of ri. Same is applicable for column also. Column के लिए भी लिख लो आप that cj interchanges when we do k times of cj. तो इधर i लिया तो इधर j नोटेशन ले लिया, ठीक है. This k should be a non-zero constant. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता. वो k का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता. Now let's understand quickly by taking down an example. Let us take one on row and one on column. Okay, लिख लो examples. Don't worry, it's very simple. एकदम simple है, कुछ भी difficult नहीं है. Example number 1. Let's take a matrix A. Matrix A. Let's take a 3x3 matrix. चलो 3x3 वाला लेते हैं. एक रो का लेंगे, कॉलम वाला लेंगे. So write down 2 minus 6 4 in the first row, 8 0 3 and minus 1 2 6. Write down this row. Now let's first see on the row. पहले रो पे देखते हैं. तो ये है रो नंबर 1, ये है रो नंबर 2 और ये है रो नंबर 3. Now what it says, multiplying each element of a row or a column by a non-zero scalar or a non-zero number, you can say. So see what does the notation says. Now please pay attention. Give me 2 minutes to write and explain. समझ लो आप, बाद में आप लिख लेना. Now suppose अगर मुझे सेकेंड रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, अगर मुझे सपोज किसी सेकेंड रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे लिखूंगा. अगर मुझे थर्ड रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे लिखूंगा. और किसी फर्स्ट रो को अगर मल्टीप्लाई करना है तो हाउ डू आई राइट डाउन. इट डिपेंड्स, नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट रो को ही मल्टीप्लाई करना है. वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से रो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है. That we'll do when we discuss, when we start solving the problem. अभी suppose, check, do not write down. अभी लिखना नहीं आप. So how do I read this? You know, ri changes when I do k times of ri. Means ith row change हो जाएगा. ith row change हो जाएगा when I multiply the ith row by some number. Say for example, do not write down. Suppose मेरे को -3 मल्टीप्लाई करना है रो नंबर 3 को. सी दिस इज रो नंबर 3. अभी सपोज रो नंबर 3 को मेरे को -3 से मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली रो नंबर 3 तो चेंज हो जाएगा ना मेरा. अगर मैं रो नंबर 3 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रो नंबर 3 चेंज हो जाएगा. हाउ? प्लीज डू हैव अ लुक. ए ट्रांसफॉर्म्स टू, अच्छा, R3 changes. R3 changes. R1 and R2 will not change. R1 will remain same and R2 will also remain same. What is going to change? So R3 changes. See how I am reading. R3 changes when we multiply -3 to row number 3. -3 into R3. So हर एक एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो -3 into -1 is +3. -3 into 2 is -6. -3 into 6 is -18. तो ये हमारा नया मैट्रिक्स ए बन गया. दिस इज अवर न्यू ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स ए. तो सिर्फ रो नंबर 3 को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया. अब आप पूछोगे सर आपने -3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया. तो जस्ट एक एग्जांपल लिया. हम 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं. यू नो वी कैन डू दैट. चेक, एम आई अंडरस्टूड विद दिस एवरीवन. ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ओके, प्लीज नोट डाउन. फर्स्ट वन का फर्स्ट ऑपरेशन है ये. मतलब अगर मुझे किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो ये हम ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग राइट नाउ ऑन दिस. ri changes when we do k times of ri. किसी भी रो को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो. दैट इज व्हाट दिस ऑपरेशन सेज. See, these are very important things. Without this, we cannot move on to the problems. और immediately हमको ये problems में लगने वाला है. This is very important part of the topic that I'm explaining you. That's why I'm going slow.
एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करने का, उस रो को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो इसी के ऊपर और एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। लेट्स डू वन मोर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस मैट्रिक्स ए। ये हो गया इसके ऊपर, अभी इसके ऊपर कुछ करते हैं। आई विल राइट डाउन, ओके, गिव मी अ मिनट। इफ एनी डाउट और एनी क्वेरी आप बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। यू नीड नॉट टू हेजिटेट एंड ऑन दैट, चलो लेट्स टेक वन मोर ऑपरेशन ऑन दिस। ये हो गया इसके ऊपर, अभी इसके ऊपर एक करते हैं। राइट डाउन सेकंड वन, ठीक है। चलो ठीक है। अभी सपोज मेरे को फर्स्ट रो को अगर 2 से डिवाइड करना है, प्लीज चेक। फर्स्ट रो को अगर मुझे 2 से डिवाइड करना है तो हाउ डू आई राइट डाउन चेक, ठीक है। नाउ व्हेन आई एम सेइंग स्टूडेंट, मेरे को फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड करना है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात है। अब बोलो 2 से डिवाइड करना है या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो एक ही मिलने वाला है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई वांट टू डिवाइड द फर्स्ट रो बाय 2, तो ऑब्वियसली फर्स्ट रो इज गोइंग टू चेंज। तो चलो लेट्स डू दिस चेंजेस। देखो, यू कैन राइट डाउन अलोंग विथ मी। ये लिखो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऑपरेशन हमने इसके ऊपर किया, नया मैट्रिक्स मिला। अब ये ऑपरेशन इसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट डाउन व्हाट विल दिस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स ए है वो अभी चेंज हो जाएगा। नाउ दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म टू अ न्यू मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है कि अभी हम 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में आए, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो सिमिलरली ये मैट्रिक्स भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, इसका फर्स्ट रो चेंज होने वाला है, तो सेकेंड रो में देयर इज नो चेंज एंड देयर इज नो चेंज इन द थर्ड रो। सेकेंड और थर्ड रो में कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो कुछ चेंजेस है वो फर्स्ट रो में है। तो डिवाइड थ्रू आउट बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू 2, तो 1/2 इंटू 2 तो ये 1 हो गया। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये -3 हो गया। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 हो गया। दैट्स इट, हो गया, नया मैट्रिक्स मिल गया। ऐसे हम बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। वी कैन कंटिन्यू, ये डॉट 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 ये स्टॉप नहीं होगा। ये हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा हम करते रह सकते हैं टिल द डिजायर्ड आंसर, जो भी हमें चाहिए। तो मीन्स व्हाट वी हैव डन, वी आर मल्टीप्लाइंग अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। चलो नाउ लेट्स डू इट फॉर कॉलम। आई होप एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड। जस्ट गिव मी द क्लियरेंस, यस और नो, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नाउ एक कॉलम वाला ले लेते हैं। लेट्स टेक वन कॉलम एग्जांपल, ठीक है। रो वाला हो गया, एक कॉलम, ठीक है। आई रब दिस ऑफ। इफ एनीवन स्टिल राइटिंग डाउन जस्ट टेल मी टू वेट, अदरवाइज आई रब दिस ऑफ। अच्छा, अभी यही मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, अभी कॉलम पे वर्क करेंगे, ठीक है। लेट्स वर्क ऑन कॉलम, लेट्स नॉट टेक सम अदर एग्जांपल, यही ले लेते हैं। चलो चेंज कर देते हैं, चलो आपके रेफरेंस के लिए चेंज कर देते हैं। नो कंफ्यूजन पेंडिंग, ओके। लेट्स टेक न्यू एग्जांपल, नया एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक है। चलो लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 2। लेट्स टेक अ मैट्रिक्स कैपिटल बी, नाम भी चेंज कर देता हूँ, बी कर देता हूँ उसका, ओके। कॉलम, अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे तो कॉलम वाइज लिखना है हमें। राइट डाउन 6 2 and 8, okay, then 9 6 3 0 2 -10, okay. Now let's see, this is column number 1, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। C1 C2 C3, C1 स्टैंडिंग पोजीशन, C2 C3, ओके। चलो नाउ लेट्स लर्न द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, रूल वही है, किसी भी कॉलम को हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन जीरो नंबर से, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। चलो अब ऐसा करते हैं, सेकंड कॉलम को
हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो राइट डाउन C2 चेंजेस when we do -2 times of C2, -2 into C2. सेकेंड कॉलम को जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकेंड कॉलम चेंज हो जाएगा ना. तो सी हाउ आई एम रीडिंग दिस, उसको पढ़ने का भी एक तरीका है. C2 changes when we multiply -2 to C2. This is how we read this. Okay, तो चलो लेट्स राइट डाउन मैट्रिक्स बी. अब जो मैट्रिक्स बी मिलेगा वो ट्रांसफॉर्म्ड वाला मिलेगा, नया मैट्रिक्स मिलेगा एक. नाउ ओनली C2 will change. C1 and C3 will remain same. C1 square bracket डालो, C1 6 2 8, C1 and C3 0 2 -10. This will remain same. C1 and C3, this will remain same. Now only C2 is going to change, students. एक मिनट, थोड़ा मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ के लिख देता हूँ. This is 0 2 and -10. ठीक है. फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम रिमेनिंग सेम. नाउ सेकेंड कॉलम should be multiplied by -2. ये देखो सेकेंड कॉलम है ये. This should be multiplied by -2. तो -2 into 9 तो ये हो जाएगा -18. 6 into -2 into 6 तो ये हो जाएगा -12 and -2 into 3 तो that's -6. ये हमें एक नया मैट्रिक्स बी मिला. वी हैव गॉट अ न्यू मैट्रिक्स बी. ठीक है. नाउ लेट अस डू वन मोर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बी. और एक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं मैट्रिक्स बी के ऊपर, बट कॉलम के ऊपर, ऑन द कॉलम. ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर किया तो ये मैट्रिक्स बी मिला. अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आप लिखो. दिस इज फर्स्ट वन हो गया. अभी सेकेंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सेकेंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या करेंगे. ओके, व्हाट विल डू यू नो, लेट अस मेक इट ऑन C2 ओनली. अच्छा चलो C3 पे भी कर सकते हैं. राइट डाउन C1 पे भी कर सकते हैं, C3 पे भी कर सकते हैं. राइट डाउन C3 चेंजेस व्हेन वी डू -1/2 टाइम्स ऑफ C3. लेट्स डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन. अब देखो ये सेकेंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर होगा. प्लीज चेक. ये किया इसके ऊपर. दिस ट्रांसफॉर्मेशन डन ऑन दिस. वी हैव गॉट दिस मैट्रिक्स. दिस ट्रांसफॉर्मेशन नाउ विल डू ऑन दिस. ये इसके ऊपर करना है. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हिच कॉलम इज गोइंग टू चेंज ओवर हियर. कौन सा कॉलम चेंज होगा. थर्ड कॉलम. यस एब्सोल्युटली. सिर्फ थर्ड कॉलम चेंज होने वाला है स्टूडेंट्स. ये जो मैट्रिक्स बी है ना, इसका सिर्फ कॉलम नंबर 3 चेंज होगा. तो मैट्रिक्स बी इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड टू. मैट्रिक्स बी इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड टू. अभी इसका कॉलम नंबर 1 6 2 8 इस पे कोई असर नहीं होने वाला है. कॉलम नंबर 2 पे भी कोई असर नहीं होने वाला है. -18 -12 एंड -6 नो effect on column 1 and column 2. Now you simplify and tell me your column number 3. C3 बताओ मेरे को आप. 0 -1 5. Very good, absolutely. This will be 0 -1 and 5. देखो -1/2 इसको मल्टीप्लाई किया. क्या आप ऐसा बोल सकते हो -2 से डिवाइड किया. -1/2 को C3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा बोल सकते हो आप. या ऐसा भी बोल सकते हो आप कि C3 को -2 से डिवाइड कर रहे हैं. तो C3 को जब हम -2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा. बोलने के लिए आप कैसे भी बोलो, लिखने के लिए हम ऐसा लिखेंगे. इट्स वन एंड द सेम थिंग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीवन. चलो लेट्स डू वन मोर ट्रांसफॉर्मेशन. थर्ड वन. वो किसी भी कॉलम किसी भी रो जैसा अपने को रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से हम चल सकते हैं. नाउ लेट अस डू इट ऑन कॉलम नंबर 3. वापस कॉलम 3 पे करते हैं, नहीं 2 पे कर लेते हैं. चलो C2 चेंजेस. अभी हम क्या करते हैं, -1/6 टाइम्स ऑफ C2 ऐसा करो. ये प्रोसीजर कंटिन्यू होते जाता है. C2 changes when we do -1/6 times of C2.
ठीक है, तो आई जस्ट रब ऑफ दिस, ये पार्ट मैं रब कर देता हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर करना है आपको। ओके, तो दिस मैट्रिक्स नाउ अगेन गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड टू, ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पर इसका C2 चेंज हो जाएगा। तो C1 एंड C1 एंड C3 आर अनअफेक्टेड, जो जैसे वैसे रख देने के पहले, और जिसको चेंज करना है वो आप बाद में लिख लो। हो गया कि टेल मी व्हाट इज कॉलम नंबर 2 नाउ। 3, 2, 1. एब्सोल्युटली, वेरी गुड। 3, 2, 1, दैट्स इट। इस कॉलम को -6 से डिवाइड किया हमने, कॉलम नंबर 2 को हमने -6 से डिवाइड किया। ध्यान रहे कॉलम देखते वक्त, while seeing the column, this is column number 2, ये ध्यान रखना है। मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट कॉलम नंबर 2 है ना तो इसको 6 से डिवाइड कर देता है। स्लीपिंग पोजीशन इज अ रो, ये देखो ये स्लीपिंग पोजीशन, आप पता है ना कैसे सोते हो आप, यू स्लीप दिस वे, स्लीपिंग पोजीशन। स्लीपिंग पोजीशन इज अ रो एंड स्टैंडिंग पोजीशन इज अ कॉलम। ठीक है, ऐसा आप याद रखो, वेरी सिंपल। स्लीपिंग पोजीशन इज अ रो एंड स्टैंडिंग पोजीशन इज अ कॉलम। तो कॉलम हमेशा माइंड में फिक्स कर रहा हूँ, कॉलम मतलब मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग पोजीशन है तो उसको -6 से डिवाइड किया बोलेंगे, या -1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक ही बात है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके, चलो, so what we have done students today, we have started off with the new topic matrices 12th standard का। ठीक है, we have seen a matrix. So what is a matrix? ठीक है, what is a matrix? And rectangular arrangement of mn numbers in m rows and n columns enclosed within square brackets is called as a matrix of order m by n. So how do we define the order of a matrix? It is number of rows by the number of columns. पहले number of rows आता है, फिर number of columns आता है। ठीक है, we have seen the generalized format, उसमें जो aij है इसको हम बोलते हैं elements of the matrix. They are called as the elements of a matrix. अभी आप arrangement देखो, A11, A12, A13. Now I'll just ask you some questions. Now can anyone tell me, ये जो element 1 present है इसका कोई पोजीशन बता सकता है मेरे को? Which position is this element 1 present in? 3, 2. Very good. It is present in position 3, 2. थर्ड रो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, थर्ड रो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है। वेरी गुड ऋग्वेदा। नाउ आई वांट समवन एल्स टू आंसर। ओके, नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हिच पोजीशन इज दिस -1 प्रेजेंट इन? समवन एल्स? 2, 3. 2, 3. 2, 3, वेरी गुड। 2, 3, वेरी गुड। तो A लिखने की जरूरत नहीं, ये 2, 3 वाला पोजीशन है। ओके, नाउ इफ सम ऑफ द गर्ल स्टूडेंट कैन आंसर, so if you can tell me this position, what is the position of this element? इसका कोई, some of the girl student can answer me this. 2, 1. 2, 1. Very good, 2, very 1. good, both of you, very good, all of you are correct. 2, 1, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है। ठीक है ना, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें मालूम होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट इट फ्रॉम योर साइड, तो आई वांट। चलो ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा। ठीक है, देन वी हैव सीन singular and non-singular matrix. Then we have seen triangular matrix, upper triangular matrix, lower triangular matrix. ठीक है, then we have seen definition of a transpose of a matrix. Transpose of a matrix is obtained by interchanging the rows and the columns. फिर उसके बाद जो हमने start किया, that was elementary transformations. So there are two types of transformations we have learned today. Something new in mathematics in 12th standard we have learned. ठीक है, बाकी सब तो definitions हमने already 11th standard में किए हुए थे। ठीक है, we have learned two types of transformation, row transformation and column transformation. As the name suggests, transformation means transform, change होना। Okay, so we have seen basically two operations till now. There is one more operation to be seen that we will be continuing next time. So two transformations, two operations, what we have seen, कि we can interchange any row with any of the column, sorry, any of the row with any of the other row. रो को रो के साथ हम इंटरचेंज करेंगे और कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे, दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, एंड देन सेकेंड ऑपरेशन दैट वी हैव लर्न इज वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो, each element of a row or a column by a
non-zero number with the help of examples we have done this. Okay, so that is what we have learned something new today in matrices. Okay, we stop for today.